CGS देखो, in CGS system, length is measured in, किसमें measure होता है length? What is the answer? Length is measured in what? Centimeter. Centimeter, right? In CGS system, length is measured in centimeter. Mass is measured in gram, and time is measured in second. लिख लिया सबने? Are you people done? Write down second. Yes, miss. Yes, In miss. CGS system, length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Next लिखो MKS system, second type. MKS system, M dot K dot S, सब कुछ कैपिटल होना चाहिए. MKS system, M dot K dot S, MKS system. In MKS system, length is measured in meter. In MKS system, length is measured in meter. Mass is measured in kilogram. And time is measured in second. लिख लिया सबने? Yes, Next miss. लिखो third type, FPS system, F dot P dot S, FPS system, F dot P dot S, FPS system, F dot P dot S. आगे जाओ. In FPS system, F stands for foot. That is, length is measured in foot. टीचर फिर से रिपीट कीजिए ना. In FPS system, F stands for foot. In FPS system, F stands for foot. That is, length is measured in foot. Mass is measured in pound. And time is measured in second. And read on next. Last type, SI system. SI system. It stands for, SI system में लिखो, it stands for System International. 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 This system has replaced all the other systems. This system has replaced all the other system and
and it has been internationally accepted, and it has been internationally accepted for the scientific use, and it has been internationally accepted for the scientific use. सबको क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? जो भी लिखवाया क्लियर हुआ? ठीक है. And it has been internationally accepted for the scientific use. ऐसा यूनिट वाला फिर से रिपीट करूंगा. It stands for System International. This system has replaced all other systems. It has been internationally accepted for scientific use all over the world for scientific use. ठीक है, आगे बढ़े. Should we move ahead? ठीक है. So let's move to the new topic. Now we have discussed already that how things are important, that which things can be called as physical quantity and which things cannot be called as physical quantity. Now this physical quantity, on the basic of their measurement, जिस तरीके से हम इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं और किस चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, उस बेसिस पे फॉर अ व्हाइल, आई डोंट नो, एक मिनट रुको. Can you people see my page? Yes, miss. Yes, miss. I don't know how much it is visible because light is coming on it and I cannot see it properly. Okay, ठीक है. So what I was saying कि already we have discussed कि physical quantity किसको बोला जाता है. जो things हम measure कर सकते हैं, they are called as physical quantity. ये बात तो सबको clear हो गई है, right? Like I cannot say Yes, happiness or sadness or something which is enjoyable to be a physical quantity because वो सारी चीजें हम measure नहीं कर सकते, उनकी value नहीं निकाल सकते हैं. हम कितने खुश हैं इसका कोई value हम नहीं निकाल सकते कि 15 kg या 16 kg हमारे पास खुशी है. So we cannot measure it. We don't have a value for it. So इस तरीके से physical quantity के measurement पे physical quantity को अलग दो types में बांटा गया है. Now what are the two types? कि उनकी मेजरमेंट के हिसाब से या उनके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है. सो व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? सो फिजिकल क्वांटिटी is basically divided into two types, and those two types are, the first type is called as fundamental quantity. क्या टाइप है पहला, बोलो बच्चों? What it is called as fundamental quantity. And the second type is derived quantity. दूसरा कौन सा टाइप है? What it is called as? Derived quantity. So first one is fundamental quantity. पहला जो है fundamental quantity है और दूसरा टाइप क्या है? Derived quantity है. अब ये fundamental quantity क्या है वो समझाते हैं. Fundamental quantities वो quantities है जिनको measure करने के लिए हम कोई formula वगैरह यूज नहीं करते. हम सीधा machines यूज करते हैं, instruments यूज करते हैं. For example, let's take example. मैंने ये एक लाइन खींच दी, ठीक है. ये लाइन मैंने कितने लेंथ की खींची है, आप बेसिकली क्या करोगे ये निकालने के लिए? इस लाइन का लेंथ, मैंने जो लेंथ खींचा है उस चीज को मेरे को पता करना है कि ये कितना बड़ा है. तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? स्केल से मेजर करोगे. आपने कहा मैम यहाँ पर हम स्केल से उसका मेजरमेंट करेंगे, लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी. मतलब ये बात आपको समझ में आई कि अगर मुझे किसी चीज का लेंथ निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट अ लेंथ ऑफ समथिंग, आई डोंट नीड टू हैव सम फॉर्मूला और समथिंग. आई जस्ट वांट अ स्केल. मैं वो स्केल यहाँ पे रखूंगी और मुझे उसकी वैल्यू आ जाएगी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ?
कुछ Yes. समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes, ma'am. सो यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए डायरेक्टली आई एम गोइंग अहेड विद अ इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम कैलकुलेटिंग इट. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ठीक है, चलो लेंथ मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे ये बताओ कि कितना बज रहा है. व्हाट इज द टाइम? व्हाट यू विल सिंपली डू? व्हाट यू विल सिंपली डू? मुझे टाइम पता करना है कि अभी कितना बज रहा है. व्हाट इज द टाइम? क्या करोगे? क्लॉक पे टाइम देखेंगे. Clock के टाइम क्लॉक पे टाइम देखोगे या मोबाइल पर टाइम देखोगे? सो वहां पे भी दोनों पे अगेन यू आर यूजिंग अ क्लॉक टू मेजर इट. यहाँ पर भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो डायरेक्टली, है ना? आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है इसको निकालने के लिए? आर यू यूजिंग सम फॉर्मूला और डायरेक्टली No. यू आर गोइंग अहेड विद द इंस्ट्रूमेंट? बोलो, व्हाट यू आर डूइंग? इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो. सो फंडामेंटल, बच्चों ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमको किसी के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट यूज करके उनकी वैल्यूज निकालते हैं. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. यस या नो? तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं. हम कोई फॉर्मूला यूज करते नहीं है. आर यू क्लियर विद दिस? इज एवरीवन Yes. क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yes, से? yes. Yes, ma'am. सबको समझा? ओके, नाउ बेसिकली 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी हैं. देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. सबसे पहली है लेंथ, which is measured in meters. SI सिस्टम में उसका यूनिट मीटर होता है. सेकेंड इज योर टाइम, जिसका SI सिस्टम में क्या यूनिट है बताओ? What is the unit? Second. थर्ड इज मास, इसका SI सिस्टम में क्या यूनिट है? kg. Kilogram. Then there is electric current. किसी को पता है इलेक्ट्रिक करंट कौन से मशीन से मेजर किया जाता है? Ampere. एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज एम्पियर. एंड मशीन कौन सी होती है? Ammeter. किसी को पता है? Yeah, it is ammeter. Fifth is your temperature, which is measured in Kelvin. Thermometer. Sixth is your amount of substance. Amount of substance is basically your moles. जो आप बोलते हो ना 1 mole, 2 mole, that. And the 7th one is luminous intensity. This is the intensity which is coming on your eyes. जो लाइट की ब्राइटनेस होती है उससे उसी से ये रिलेट होती है. So luminous intensity which is measured in a unit known as candela, CD. So ये 7 हमारी बेसिक फंडामेंटल टाइप्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है. क्या क्या है फिर से देखो? लेंथ is measured in meter, time is measured in time, mass is measured in kg. SI system में हाँ, electric current is measured in ampere, temperature is measured in Kelvin, amount of substance which is measured in moles, and luminous intensity ये somewhat related to brightness है. आप जब stars की brightness वगैरह के बारे में बात करते हो आप intensity के terms में बात करते हो. So which is measured in candela. So these are the 7 fundamental quantities. और अभी मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जिन क्वांटिटीज को किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है अलग अलग, बट इनको मेजर करने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके इनको मेजर करते हैं. आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, सबको miss. क्लियर है? Yes. कोई भी ऐसा है जिसको मिस नहीं समझ में आ रहा है? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? अगर आपको किसी ने पूछा कि बेसिकली बताओ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, आपको सिंपली ये बोलना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उनको मेजर करते हैं. आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? और जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी, अब आपको पता चल चुकी है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. बोलो, व्हाट आर द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7. सो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को, लिसन बच्चों, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं? द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर कॉल्ड एज, क्या होगा? आपको क्या लगता है? इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। Unit. ये सबको क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर Yes, टू miss. एवरीवन? The next part is okay. So can you people hear me? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes, miss. ठीक है। Now what is derived quantity? ये वर्ड डिराइव्ड वर्ड ही इटसेल्फ आपको कुछ बता रहा है कि कहीं से डिराइव होने वाली क्वांटिटीज है। जैसे कि लेट्स से स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? Distance Distance upon Once time. upon time. Distance upon Distance upon time. Distance upon time. Correct? So distance is basically what? Distance है क्या? Distance तो लेंथ ही है ना। आप एक साइड से दूसरे साइड, समझो आप 1 मीटर गए, सो आपने जो लेंथ कवर किया वो 1 मीटर कवर किया, तो डिस्टेंस इज बेसिकली अ लेंथ। ओके, सो लेंथ अपॉन टाइम, मतलब आप ये देख रहे हो कि आपको स्पीड निकालने के लिए आपको लेंथ और टाइम की मदद लेनी पड़ रही है। आप जब स्पीड की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ रही है? लेंथ की मदद लेनी पड़ रही है और टाइम को मेजर करना पड़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर ये जो हमारा स्पीड है, ये दो चीजों के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उससे, कितने टाइम में कवर हुआ है उससे। सो जब कोई क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से निकाली जाती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी भी हो सकती हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दिस ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म से कैलकुलेट हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा? इज देयर एनीवन कि नहीं मैम डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं समझा? कोई है ऐसा? बोलो बच्चों, समझा आपको डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? Yes, teacher. डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम दूसरों के हेल्प से डिराइव करते हैं, जिसकी वैल्यू को हम दूसरों के हेल्प से डिराइव करते हैं। वहां पे हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि अगर मैं स्पीड की बात कर रही हूँ तो मेरा स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस, दूसरा टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितने टाइम में कवर हुआ है। हम जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब हमको स्पीड की वैल्यू मिलती है। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो डिराइव हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से। द क्वांटिटीज विच आर derived, which are calculated with the help of other quantities, और इनके लिए अब what will be the unit बच्चों? इसका यूनिट क्या होगा? What will be the unit? स्पीड का यूनिट क्या होता है? Meter per second. मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो कैसे आया मीटर पर सेकेंड? डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, सो स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा, the unit of the speed will be meter per second. Are you clear? Is everyone clear? Yes, ma'am. So जो यूनिट्स हम डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम बोलते हैं, ऐसे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बताओ बच्चों? What it is called as? Derived बोलो। quantities. डिराइव्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स हम डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। Is this part clear everyone? Is this part clear everyone? Yes, ma'am. सबको डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट समझा? कोई ऐसा है जिसको ये पार्ट क्लियर नहीं है कि नहीं मिस नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये पार्ट क्लियर नहीं है कि व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? ठीक है, आई एम कमिंग टू यू, आई विल आस्क यू तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, किसको पूछेंगे पहले? फर्स्ट आई आस्क टू कीर्तना। कीर्तना, आर यू फ्रॉम द बैच 2? Yes, miss. ओके, आपको समझा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? Yes, miss.
डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है वो समझा? Yes, miss. ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं कहती हूँ एनर्जी, तो मेरी जो एनर्जी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? बोलो कितना, एनर्जी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी या डिराइव्ड क्वांटिटी होगी? देखो फंडामेंटल तो साथ ही होती है, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या इसके अंदर एनर्जी है फंडामेंटल क्वांटिटी के? No. तो एनर्जी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? Direct quantity. यस, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? डू यू नो? एनर्जी कौन सी में मेजर करते हैं? Joule. जूल्स में मेजर करते हैं। इज एवरीवन क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes, teacher. Yes. ठीक है, सो लेट मी आस्क टू समवन एल्स हु इज फ्रॉम द बैच 2। ठीक है, संस्कार इज फ्रॉम बैच 1 बट आई विल आस्क संस्कार। संस्कार, Yes, miss. व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? किसी को अगर समझाना हो कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है तो कैसे बोलोगे? व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? Derived quantity is a quantity in which, with the help of fundamental units, we can express the quantity. Yes, the quantities which can be expressed with the help of fundamental units are called as derived quantities. Derived quantities को हम fundamental quantities के help से define करते हैं। जैसे कि मैंने speed का, speed is a derived quantity, तो हमने उसको दो fundamental quantities के help से calculate किया है, right? कौन सी दो fundamental quantities है जो हम speed को calculate करने के लिए use कर रहे हैं? कौन सी है? Distance and श्रद्धा time. बता सकते हो? कौन सी दो fundamental quantities है जिसके help से हम speed calculate करते हैं? Length or time, miss? Yeah, it Length is and length and time. That's very true. It is length and time. ठीक है, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? Yes, miss. ठीक है, लेट मी आस्क टू समवन एल्स। जोमिन, कैमरा ऑन करो। आई डोंट नो वेदर आई एम टेकिंग योर नेम करेक्ट और नॉट। हेलो, आर यू देयर? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So can you tell me what is fundamental unit? फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं? Go ahead, बोलो, ट्राई करो। Units with which we measure fundamental quantities. Yes, those are those units. अगर आपको कोई पूछ रहा है फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स हैं जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? सबको क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, चलेगा। चलो फिर हम आगे बढ़े चीजों के साथ। शुड वी मूव अहेड? नेक्स्ट Yes, लेक्चर में ma'am. आपको मैं सम्स करवाने वाली हूँ, वो सम्स थोड़े टफ होने वाले हैं। सो बेसिकली आज कुछ चीजें सीख के लेते हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम सम्स करेंगे, ठीक है? सो ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चीज, हम लोग जब यूनिट्स लिखते हैं, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। अब ये जो हमने अभी देखा कि अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं जिसमें यूनिट लिखा जाता है, राइट? वी हैव सीन दैट कि हमारे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम यूनिट्स को लिखते हैं या जिसमें हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो यूनिट्स को लिखते वक्त ना बच्चों, यूनिट्स को लिखते वक्त हमको कुछ रूल्स फॉलो, वी नीड टू फॉलो सम रूल्स। और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हुए तो हमारा यूनिट लिखने का तरीका गलत हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या साइंटिफिक कन्वेंशन है जिसके हिसाब से हमको यूनिट्स को लिखना चाहिए। हम अगर उस तरीके से नहीं लिखते हैं तो साइंटिफिकली जब आप कहीं पर जाते हो और अगर आप वो गलतियां करते हो तो लोगों को लगता है कि आपका बेसिक्स ही वीक है। सो कोई भी एसआई सिस्टम लिखते वक्त, एसआई सिस्टम का यूनिट लिखते वक्त आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी यूनिट हो इस दुनिया में, लेट इट बी एनी यूनिट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी यूनिट हो फिजिकल क्वांटिटी का, हर यूनिट का एक सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है? व्हाट इज द सिंबल फॉर दिस? इस केजी,
kg, सो जितने भी यूनिट्स प्रेजेंट है फिजिकल क्वांटिटी के, जितने भी यूनिट्स प्रेजेंट है, हर यूनिट का क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट इज प्रेजेंट? व्हाट इज देयर इज अ सिंबल फॉर इट, और हम उन सिंबल्स का यूज करते हैं। सबको क्लियर हुआ? सबको ये बात क्लियर हुई? Yes, miss. Yes, miss. ओके, नाउ सेकंड रूल। फर्स्ट रूल तो बहुत इजी था कि मैम इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबका यूनिट है, और सबका यूनिट है तो सबके यूनिट के कहीं ना कहीं सिंबल्स प्रेजेंट है और हम वो सिंबल यूज करते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है? बहुत ध्यान से सुनो। सेकंड रूल ये बोलता है कि कोई भी यूनिट होने दो, कोई भी यूनिट, लेट इट बी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो। जैसे कि आप यूनिट क्या होता है पता है? ऐसे बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बोलो। Newton. Newton, of course, it is Newton. So, second mass is measured in kilogram. Second rule ये बोलता है कि जब भी आप यूनिट लिखते हो या जब भी आप यूनिट लिखते हो, हमेशा ये जो पार्ट है, जो उसका फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो या कुछ भी हो, या कुछ भी हो। हमेशा हमको उसको कौन से फॉर्म में लिखना है? बोलो, हमेशा हमको उसको कौन से फॉर्म में लिखना है? स्मॉल लेटर के Small टर्म्स में letter. लिखना है। समझा? किलोग्राम लिख रही हूँ तो किलोग्राम का ए छोटा चाहिए, मैं न्यूटन लिख रही हूँ तो न्यूटन का एन। मतलब अगर वो साइंटिस्ट का नाम है, Are you clear on that? को समझा मैंने क्या कहा? एवरीवन, या फिर रिपीट करूं? Miss, please repeat करो ना first और second point. Okay. फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, सब फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होता है और हर यूनिट का एक तो देखो, can you see? Hello, am I audible? sir, voice is breaking. Voice is breaking for everyone. Yes, miss. Yes, miss. Yes. Still it is breaking. No, miss. No, miss. Okay. Can you see my page? Yes, miss. Okay. So what I was saying that पहला रूल ये बोलता है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट होता है और हर यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल प्रेजेंट होता है। जैसे कि किलोग्राम का सिंबल है केजी। ये सबको क्लियर हुआ? पहला रूल सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके। सेकेंड रूल ये बोलता है कि जब भी आप यूनिट लिखते हो, whenever you write unit, हमेशा अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो यूनिट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंबल, अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो यूनिट का,
तो हमेशा आपको फुल फॉर्म स्मॉल लेटर से शुरू करना है, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो या कुछ भी हो, हमेशा आपको फुल फॉर्म शॉर्ट स्मॉल लेटर से लिखना है. इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? फॉर एग्जाम्पल, Yes, miss. फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. सो न्यूटन का जो न्यूटन का जो फुल फॉर्म होगा, उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा, दैट इज स्मॉल एन. वैसे ही जब आप मास का यूनिट लिखते हो किलोग्राम, तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर विल बी अ स्मॉल लेटर. इज इट क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? बट जब आप सिंबल लिखते हो, व्हेन यू राइट सिंबल, सो अगर वो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होने वाले यूनिट का है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, अगर Newton. वो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होने वाले यूनिट का है, तो उसके सिंबल को हमको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है. मतलब न्यूटन को अगर आप सिंबल फॉर्म में लिखोगे, लिखोगे. समझ? क्लियर हुआ? Yes, miss. बट अगर किलोग्राम का सिंबल लिखना हो, ये किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू हो रहा है क्या? ये किसी नहीं. साइंटिस्ट के नहीं. नाम से शुरू हो रहा है क्या? नहीं. तो फिर यहाँ पर आप स्मॉल लेटर ही यूज करोगे. सो ये सिंबल में ये जो स्पेशलिटी मिल रही है, ये उन्हीं यूनिट्स को होगी जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से बने हैं. फुल फॉर्म में आपको कोई स्पेशलिटी नहीं देना है, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है. पर जब आप सिंबल लिखते हो, तो साइंटिस्ट के नाम को आपको कैपिटल लेटर से लिखना है. Is this clear everyone? Yes. Yes, miss. ठीक है, थर्ड रूल पे जाओ. हमको सिंबल्स में साइंटिस्ट के नाम को वैल्यू देनी है. ये सबको क्लियर हुआ? इस वजह से हमको वो कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी सारी चीजें हमको स्मॉल लेटर में लिखनी है. सो लेट्स गो टू थर्ड रूल. जरा थर्ड रूल समझते हैं. थर्ड रूल ये बोलता है कि कभी भी हमको सिंबल्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. मतलब अगर आप 5 kg लेने जा रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू से 5 kg ओनली. 5 kgs जैसा कुछ नहीं होता. दिस इज रॉन्ग. प्लूरल फॉर्म में कभी भी सिंबल नहीं लिखे जाते. इज क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes, miss. 5 kg, 10 kg, 15 kg. kg is a kg. kgs जैसा कुछ नहीं होता. Even if you purchase 100 kg, you'll say 100 kg. You will never say 100 kgs. You will never write that in this way. Clear हुआ थर्ड रूल सबको? Yes. Yes, miss. Okay. फोर्थ रूल. फोर्थ रूल ये बोलता है कि कभी भी आपको जब आप सिंबल लिखो, तो आपको कोई फुल स्टॉप डालने की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड टू पुट फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, समझो हमने 5 kg, तो यहाँ पर ऐसा फुल स्टॉप डालने की जरूरत नहीं है. फुल स्टॉप और एनी एंड स्टॉप ओवर देयर. सो सिंपली 5 kg लिखकर छोड़ देना है, आगे कोई डॉट नहीं डालना है. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? इज दिस क्लियर? Yes, miss. ये चारों रूल सबको क्लियर हुए? सबके पास फिजिकल, सारे फिजिकल यूनिट के पास, सबके पास यूनिट होता है, सबका सिंबल होता है. दूसरा रूल बोलता है कि किसी भी चीज को आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सिर्फ जो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है, सिर्फ उसी सिंबल को कैपिटल में लिखना है. थर्ड रूल बोलता है कि यूनिट्स के सिंबल में कोई प्लूरल फॉर्म जैसा कुछ नहीं होता. इवन इफ यू टेक 100 kg, यू नीड टू राइट 100 kg. 100 kgs जैसा कुछ नहीं होता. एंड आपको किसी भी यूनिट के बाद, यूनिट के सिंबल के बाद फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है. सारे रूल्स क्लियर हुए? हाँ, miss. Yes, miss. Let's go ahead with the fifth rule. Let's go ahead with the fifth rule. अब let's try to find out something. आपको पता है what is acceleration? What is acceleration? Mass into velocity. Acceleration क्या होता है? No, force is mass into
एक्सेलरेशन चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी क्यों, कहाँ पहुंच गया आप? वो मोमेंटम है. I said acceleration. Acceleration is velocity upon time. पता है ये बात? Acceleration is velocity upon time. कहीं पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes. कोई मुझे यूनिट बताएगा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? Meter per second square. यस. कैसे आता है देखो. वेलोसिटी का यूनिट होता है, अभी हमने देखा था, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यूनिट था वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और नीचे भी एक सेकंड आ गया. अब यूनिट को लिखने का ये कोई तरीका नहीं होता. इधर अगर 2 सेकंड आ रहा है तो आप ऐसा लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख दो मीटर s⁻². ये दोनों करेक्ट तरीके हैं. ये लिखने का कोई भी यूनिट लिखने का ये तरीका नहीं है. दिस इज रॉन्ग वे. आइदर यू हैव टू राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यू हैव टू राइट ms⁻². ये दोनों सही तरीके हैं. समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर कोई सेम क्वांटिटी एक के नीचे एक आ रही है तो हमको इसको इस फॉर्म में छोड़ना नहीं है. ऐसा कोई यूनिट नहीं होता. हमको या तो इसको इस फॉर्म में लिखना है या तो इसको इस फॉर्म में लिखना है. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा एवरीवन? Yes, miss. So acceleration is velocity upon time. Velocity मीटर अपॉन सेकंड में मेजर होता है, टाइम सेकंड में मेजर होता है. तो हमको यूनिट को इस फॉर्म में नहीं लिखना है. या तो यूनिट इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो यूनिट इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. Is this everyone clear with this part? Yes, miss. Yes. Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब जब आप यूनिट लिख रहे हो, when you are writing unit, जैसे कि let's take example for speed. ये मेरा 6th rule है. Let's take example for speed. Speed का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था? What was the formula for speed? Distance Meter per second. Upon time. Distance upon Time. इसका यूनिट हमने क्या देखा था? Meter per second. मीटर Meter per second. अब देखो, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मतलब ऊपर हम पूरा यूनिट यूज करें और नीचे हम सिंबल यूज करें. ऐसे नहीं चलेगा. या तो आपको पूरा यूनिट में लिखना होगा या तो आप ऐसा लिखो, आ रही आएगा, या तो आप ऐसा लिखो मीटर पर सेकंड, या तो आप ऐसा लिखो. दोनों को कंबाइन करके नहीं लिख सकते कि एक जगह पूरा यूनिट लिख रहे हो और एक जगह आप सिर्फ सिंबल लिख रहे हो. अगर आप लिख रहे हो तो या तो पूरा का पूरा यूनिट लिखो या तो पूरा का पूरा सिंबल यूज करो. समझ में आया? दोनों को मिक्स करके यूज नहीं करना है. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, sir. Yes. Okay. Now, next is let's take the 7th rule. 7th rule is अभी हमने देखा कि this is meter per second, right? So इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं. या तो आप ऐसे लिख लो मीटर पर सेकेंड, या तो आप ऐसे लिख लो. ये दोनों तरीके सही है. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. You can also write it as. So these are the ways in which you should write the unit. इस तरीके से आपको लिखना है. ठीक है? And the 8th rule that you should follow is basically there are some what I can say, there are some names given to the suffixes and prefixes. For example, 10⁻³ second. This can be also written as 1 millisecond. ये आपको पता है? Do you know about this? 10⁻³ can be written as 1 millisecond. देखो मैंने आपको फेम्टोमीटर सिखाया और माइक्रोमीटर सिखाया, याद है? Yes, याद है? miss. Yes, ma'am. 10⁻6 was your 1 microsecond. Now you can also write it as
1000 ग्राम कैन बी रिटन एज 1 kg. 1000 की जगह पे हम k डाल सकते हैं. So these are the some basic rules that you can follow while writing the units. अब मैम इस पे सीखने वाली क्या बात है? समझो आपका ये 10⁻⁻6 सेकेंड है, ठीक है? ये आपका 10⁻⁻6 सेकेंड है. अगर मैं ऐसे लिखूं इसको 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेकेंड, और हमने देखा है 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 1 millisecond. 1 मिली. तो मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती. आई कैन नॉट राइट इट एज 1 10⁻³ का 1 मिली, 10⁻³ का दूसरा मिली और सेकेंड. ऐसा लिखना गलत होगा. दिस इज रॉन्ग. अगर 10⁻6 है तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? व्हाट इट इज कॉल्ड एज 1 माइक्रो सेकेंड. समझ में आया? ये 1 mm करके ऐसा कुछ नहीं होता. यू कैन नॉट राइट दिस कि 10⁻6 को मैं -3 लेके mm करके लिख दूं. दिस इज रॉन्ग वे. अगर 10⁻6 है तो वो आपका माइक्रो बन जाएगा. उसको आप 10⁻³ 10⁻³ करके 2 बार मिली नहीं लिख सकते. सबको समझा मैंने क्या कहा? सबको क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? मैं सारे रूल्स एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. आई एम रिपीटिंग ऑल द यूनिट्स. आई एम रिपीटिंग ऑल द रूल्स, कन्वेंशंस. पहला रूल याद है बच्चों क्या था? हर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है? हर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है? बोलो. एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव अ Symbol. symbol. Have a unit and the units have a symbol. दूसरा रूल क्या बोलता है? याद है? क्या बोलता है दूसरा रूल? सेकंड रूल क्या बोलता है बच्चों? साइंटिस्ट के नाम को स्मॉल नहीं बिग लेटर से रिप्रेजेंट करें. नहीं, दिस इज रॉन्ग. उन्होंने बोला कि कोई भी चीज को स्पेशलिटी नहीं मिलनी चाहिए. जब आप फुल फॉर्म लिखते हो तो सब कुछ आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो, चाहे आपको वो कोई भी क्वांटिटी हो. जब आप फुल फॉर्म लिखते हो तो आपको हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करना है. सिर्फ साइंटिस्ट के नाम को वैल्यू कब देनी है? जब आप क्या लिख रहे हो? व्हेन यू आर राइटिंग व्हाट? व्हेन यू आर राइटिंग सिंबल. व्हेन यू आर राइटिंग सिंबल. अगर आप किसी और, वो भी अगर आप किलोग्राम जैसे यूनिट को आप सिंबल में लिख रहे हो, वहां पर आपको स्मॉल लेटर ही यूज करना है. सो साइंटिस्ट के नाम को सिर्फ एक ही जगह पर वैल्यू मिलती है कि वहां पर हमको उसको कैपिटल में लिखना है, और वो कौन सा प्लेस है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? कब हमको सिंबल लिखते वक्त. बाकी हर जगह हमेशा हमको क्या यूज करना है? यूनिट लिखते वक्त हर जगह हमेशा हमको क्या लिखना है? क्या यूज करना है? कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? स्मॉल लेटर. क्लियर है? सबको क्लियर है ये सेकंड रूल? Yes, miss. आपको कहीं पर भी एवर फुल फॉर्म लिखते वक्त कहीं पर भी आपको कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है. कैपिटल लेटर सिर्फ एक ही जगह यूज आता है, वो भी तब जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम के यूनिट का सिंबल लिखते हैं. इज एवरीवन क्लियर विद दिस रूल? सबको क्लियर Yes, हुआ मैंने miss. क्या कहा? ठीक है. थर्ड रूल मैंने क्या कहा था कि कोई भी यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता. लाइक इवन इफ यू आर सेइंग 10 सेकंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज 10 सेकंड्स. एस के साथ एस नहीं लगता. प्लूरल फॉर्म में कभी कोई सिंबल नहीं लिखा जाता. नेवर एवर. यू आर राइटिंग 5 kg, सो इट विल बी 5 kg ओनली. 5 kgs जैसा कुछ नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सिंबल को कभी भी आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, इज इट miss. क्लियर व्हाट आई सेड? नेक्स्ट इज, आपको कभी भी यूनिट लिखने के बाद उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाना है. आपने यूनिट लिख दिया, आपको छोड़ देना है. आपको कोई फुल स्टॉप, कोई हिंदी इंग्लिश मराठी का पेपर नहीं लिख रहे हो, आप फिजिक्स का पेपर लिख रहे हो, आपको यूनिट लिखने के बाद आगे फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? समझा मैंने Yes, क्या miss. कहा? Yes, miss. नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर समझो कोई ऐसी क्वांटिटी है जैसे कि एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड. टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो इसको हमको इस फॉर्म में यूनिट नहीं लिखना है. या तो यूनिट इस फॉर्म में लिखा जाएगा या तो यूनिट इस फॉर्म में लिखा जाएगा, पर मीटर अपॉन सेकंड जैसा कुछ भी नहीं होता. आर यू व्हाट आई सेड? समझा Yes, मैंने miss. क्या कहा? Yes, miss. सारे रूल जो सामने हैं वो क्लियर है आपको?
ये सारे रूल Yes, जो miss. सामने हैं वो Yes. आगे जाता है। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लिख रहे हो यूनिट का, जैसे कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर, टाइम का यूनिट इज सेकंड, तो आपको लिखते वक्त ये नहीं करना है कि एक जगह पे आपने फुल फॉर्म यूज कर लिया और दूसरे वाले के लिए आपने सिंबल यूज कर लिया। या तो पूरा सिंबल यूज करो या तो पूरा फुल फॉर्म यूज करो, दोनों का मिक्सचर यूज करना नहीं है। हुआ क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes, miss. तब या तो पूरे नाम से बुला लो, दोनों को पूरे नाम से बुला लो, या तो दोनों को सिंबल के टर्म से रिप्रेजेंट कर दो। एक को सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करो, एक को फुल फॉर्म के हेल्प से रिप्रेजेंट करो, नहीं चलेगा। समझा आपको? क्लियर हुआ? Yes, miss. नेक्स्ट 7th रूल, आप यूनिट को मीटर पर सेकेंड, ms रेज टू -1 या m-s रेज टू -1 ये सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन राइट दिस इन दिस वे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अगर समझो आपके पास 10⁻⁻6 है, विच इज कॉल्ड एज माइक्रो, 10⁻⁻6 इज कॉल्ड एज माइक्रो, तो आप 10⁻⁻6 को तोड़ के 2 10⁻³ बनाकर उसको मिली कर नहीं लिख सकते। इफ इट इज 10⁻⁻6 यू हैव टू राइट इट एज माइक्रो। उसको तोड़कर आप मिली सेकेंड करके नहीं लिख सकते। इट इज माइक्रो, देन इट इज माइक्रो। यू कैन नॉट राइट इट एज मिली सेकेंड, यू हैव टू राइट इट एज 1 माइक्रोसेकंड। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. समझा everyone? So ये सारे रूल्स क्लियर Yes, हुए? ma'am. किसी रूल में किसी को कोई डाउट है? हमने आज क्या क्या पढ़ा? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी की जरूरत नहीं है निकालने के लिए, हम सीधा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है, 7 टाइप आपके सामने, 7 के 7 टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज फंडामेंटल यूनिट। फिर हमने डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में सीखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से निकाली जाती है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है। वन एग्जांपल इज स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं वो कौन सी है बच्चों? विच इट इज लेंथ अपॉन टाइम। सो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लेंथ और टाइम जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं। जो यूनिट हम डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। There are many derived unit in this world and there are many derived quantities in this world. Is this clear? Whatever I have taught you till today? सारी चीजें Yes, क्लियर है? ठीक है। सो इसका नोट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे और फिर सम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। आज सबको सब कुछ क्लियर है? क्या पढ़ाया? Yes, ma'am. ठीक है। सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you, miss. Thank you, miss.